So, okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is a mechanical property of solid. In the first part of your 11th standard physics, we basically dealt with the motion. So the approach of the physics so far uh, based on the motion, but friends, today and now onwards we are going to discuss some new kind of chapters, that is a mechanical property of solid. So in this chapter we are not going to deal with the motion, but what we are going to deal, if we apply the force, then what does there is a change, what does change in the body, what is the deformation, how the body react on application of the some external force, that is to be studied in the this chapter, that is a mechanical property of a solid. And then then successive chapter, in the next successive chapter, it will be the property of the fluid. So fluid mechanics will be discussed in the next part. So basically this 9th and 10th chapter are based on the property of solid and fluid माने liquid and gas, both fluid is liquid and gaseous substance both considered to be a fluid. ये सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में ये 9th and 10th चैप्टर है. So I had just started the introductory part of this chapter, and we had discussed about the stress and strain. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस किया था. हमने ये देखा था कि जब हम कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो बॉडी उसको अपोज करता है, उसमें उसके अंदर कोई उसके अपोजिशन में एक फोर्स क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स. नो डाउट बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स तो प्रोड्यूस होता ही है, तो होता है, बट जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई करते हो तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन हो ही जाता है, कुछ ना कुछ तो उसके चेंज हो ही जाता है. इट्स लेंथ कैन बी चेंज्ड, its volume can be changed, or its shape can be changed. So this kind of three deformations can be takes place, and correspondent to that, three kind of strains are going to be defined. Three kind of strain is going to be defined, and correspondent to that, three kind of stresses are going to be defined, and correspondent to that, three kind of modulus are defined. So today we are going to discuss in which circumstances which kind of stress and strain are produced. So I'm going to share the whiteboard and we'll start a topic of stress, strain and modulus. So today our task is to discuss about the stress, strain and modulus. So friends, the very first we will discuss what is a strain. So on the application of the deforming force, the body in the body, a length, shape or volume can be changed. So relative change in the length, volume or a shape of body on applying deforming force. So this is what is known as a strain. So a strain is actually a unitless three kind of strains are possible, because the body three kind of changes is possible in the body.
its length can be changed, its volume can be changed, its shape can be changed. So corresponding to these three kind of changes in the body, three kind of strains are produced. When you apply a force perpendicular to the cross sectional area, मेरी बात ध्यान से सुनना. Let this is the wall, and with this wall, assume that with this wall, assume that okay, a road is fixed. One of the end of the road is fixed with this wall, and with the other end at the cross section, we are providing a force which is perpendicular to the cross section. So when I apply the force like this in this manner, then what happened to the road? आप देख सकते हो क्या होगा जब आपने ऐसे force apply किया. Assume that the initial length of the road was a L, but now its length is going to be slightly below. more बढ़ गया. More. Increases. L plus. So now it is comes out to be a L plus delta. And it may possible that you will apply the force in the opposite manner in the inward direction. So when you apply the force in the inward direction to the, which is once again perpendicular to this cross sectional area here. So if you apply this kind of force inward to this road, then the length is going to be decreases. So corresponding to the change in the length, it is defined as a longitudinal strain. So friends, the longitudinal strain is nothing but it is the relative change in the length, that is a delta L by L. But what is the condition for the longitudinal strain? To produce the longitudinal strain, what is the condition? The condition is you have to apply the force perpendicular to the cross section. If you apply the inward force to the cross section area, length is going to be decreases. And if you apply the force outward to the cross section area, length is going to be increases. So corresponding to the increase in the length, it is said to be a tensile strain. And corresponding to the decrease in the length, it is said to be a compressive strain. So if the length is increased by application of the deforming force, it is said to be a tensile strain. And if the length decreases, then it is said to be a compressive strain. Is that clear, friends? Is it understood all about the strain? Yes, sir. Now you identify why the strains are unitless. Because in the numerator and denominator, you got the same unit. So the final unit comes out to be cancelled. So it is that clear? सर Yes. बोलिए सर ये सर थर्ड केस में आपने अंदर की तरफ फोर्स लगाया ना. हाँ 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 हाँ, तो उसका लेंथ डिक्रीज होगा. ओके सर. If you are not able to see the clearly, you can make your mobile in the horizontal state, and you can zoom in, zoom out on the mobile. You can definitely able to see this. Horizontal रखो मोबाइल और उसको zoom कर सकते हो आप इसको स्क्रीन को, आपके मोबाइल की स्क्रीन को, तो डेफिनेटली आपको दिख पाएगा. ओके ओके सर.
Now assume that we have a body and we are providing the force everywhere at every places perpendicular to the body everywhere and equal force. So in this kind of circumstances you can definitely change the क्या होगा change इसमें shape. shape. नो शेप अगर आप इक्वल फोर्स परपेंडिकुलर अप्लाई करोगे तो शेप चेंज नहीं होगा शेप तो वही का वही रहेगा जैसे स्फीयर Volume. size, Size. हाँ तो उसका साइज नहीं बोलना चाहिए volume, तो जैसे स्फीयर है तो स्फीयर को इफ यू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम एवरीवेयर ऑन द स्फीयर तो स्फीयर विल बी रिमेन्स द स्फीयर शेप डज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड बट इट्स वॉल्यूम इज गोइंग टू बी चेंज्ड इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स सो Yes, sir. to apply the force you need to apply the force which is which is following three conditions. Number one, you have to apply the force everywhere. Perpendicular. Number one, you have to apply the force everywhere. ये क्या हो रहा है? Number two, you have to apply the force normal to everywhere, that is perpendicular to each point. And number three, you should apply the similar same force. अदरवाइज क्या होगा कि एक साइड अगर फोर्स कम है एक साइड ज्यादा है तो जिस साइड फोर्स कम है वहां पे वॉल्यूम कंप्रेस होगा बट जहां पे फोर्स ज्यादा है वहां पे कंप्रेशन होगा बट जहां पे फोर्स कम है वहां से वापस से वो बाहर निकल जाएगा ऑब्जेक्ट मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो आपको एवरी पॉइंट पे परपेंडिकुलर इक्वल फोर्स अप्लाई करना है तो डेफिनेटली आप वॉल्यूम में चेंज ला सकते हो एंड करस्पॉन्डेंट टू द चेंज इन द वॉल्यूम द स्ट्रेन विच इज डेवलप्ड इट इज नोन एज अ volume strain. Sometimes it is also known as a bulk strain. So इसका जो symbol है ना वो epsilon volume. So delta V by V. So this is your volume strain. Is that understood, friends? सर अगर सेम फोर्स नहीं लगाएंगे तो शेप चेंज हो जाएगा. हाँ तो शेप भी चेंज हो सकता है कुछ मतलब वॉल्यूम एक साइड से डिक्रीज होगा तो दूसरे साइड से बढ़ जाएगा तो वापस से वॉल्यूम वही का वही आ जाएगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वो हमारे लिए काम का नहीं है इज दैट क्लियर Yes, sir. अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि लेंथ इज अ मेजरेबल थिंग लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम को भी हम मेजर कर सकते हैं बट शेप इज नॉट द थिंग विच कैन मेजर तो ये तीसरा वाला जो स्ट्रेन है ना उसको शेप के करस्पॉन्डेंट स्ट्रेन बोलते हैं तो उसको बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेन इसको शीयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं दैट इज द स्ट्रेन करस्पॉन्डेंट टू द शेप चेंज इन शेप अब क्वेश्चन इज दैट how will you measure the change how will you measure the change in shape because shape is not the thing you can measure शेप उसको बोल सकते हैं कि भाई वो स्फेरिकल है सिलिंड्रिकल है वो क्यूबॉइड है क्यूब है ऐसा स्फेरिकल है ऐसा बोल सकते हैं बट उसको मेजर नहीं कर सकते हैं फिर भी मुझे शियरिंग स्ट्रेन को मुझे मेजर करना है तो how will you determine the relative change in the shape तो उसके लिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना फ्रेंड्स सपोज आपके पास एक वॉल्यूम है एक सिलेंडर है सिलेंडर का जो नीचे का पार्ट है उसको मैंने फिक्स्ड किया हुआ है सिलेंडर का जो नीचे का जो पार्ट है उसको है ना मैंने फिक्स्ड किया हुआ है नीचे का जो सरफेस है ना उसको फिक्स्ड किया हुआ है और सिलेंडर के ऊपर के सरफेस को मैं है ना टेंजेंशियली फोर्स लगाता हूँ ऐसे applying the force tangentially to the upper surface of the cylinder. The bottom surface I already had fixed with the ground and the above
upper surface I am applying, on the upper surface I am applying the tangential force. तो थोड़ा सोच के बताओ क्या होगा तो फिर टिल्टेड हो जाएगा। या तो ये जो सिलेंडर है ना वो थोड़ा इस टाइप का हो जाएगा। Am I right, friends? Yes, sir. जैसे कोई बुक Yes, पढ़ी है, sir. जैसे कोई बुक पढ़ा हुआ है तो बुक के ऊपर के सरफेस पे आप ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो बुक भी थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. पहले जो शेप था वो सिलिंड्रिकल था, बट क्या अब जो शेप है उसको सिलिंड्रिकल बोल सकते हैं हम? नहीं, अभी जो शेप है वो 100% सिलिंड्रिकल नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शेप तो Change हुआ है। हो रहा है। तो ये शेप तो चेंज हुआ, मतलब कंडीशन ये है कि अगर आपको बॉडी का शेप चेंज करना है तो आपको कैसे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? Tangential. You have to apply the force tangential Tangential. to the surface. You have to apply the force tangentially to the surface. Then you can change the shape of the body. देखो अब मुझे उसका मेजरमेंट करना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि हाउ विल यू मेजर द शेप चेंज? हाँ, ये तो पता प्रैक्टिकली पता चल रहा है कि भाई ऐसा टेंजेंशियल फोर्स हम प्रोवाइड करेंगे तो शेप में डेफिनेटली चेंज होगा, बट उसको मेजरमेंट करना है। उसको मेजर कैसे करेंगे? तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखो एक आइडिया है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी। ये मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो सिलेंडर था उसका जो एक्सिस है, एक्सिस, तो इनिशियली ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो है और उसके एक्सिस के साथ एंगल कितना है इनिशियली? 90 degree. नहीं, my question is the angle between the perpendicular line and the axis of the cylinder. 0. जीरो। देखो आप देख सकते हो परपेंडिकुलर ही एक्सिस है, परपेंडिकुलर लाइन ही है, बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द एक्सिस विल बी लाइक समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो सिलेंडर का जो Yes, sir. Yes. उसके साथ ये परपेंडिकुलर लाइन कुछ एंगल सब्सटेन कर रही है। तो इनिशियली द एंगल वाज 0, बट नाउ यू कैन सी देयर इज सम एंगल। नाउ यू कैन सी देयर इज सम एंगल सब्सटेंडेड बाय दिस परपेंडिकुलर लाइन। तो जब एंगल 0 था तो शेप में चेंज नहीं था। जब ये एंगल बन रहा है तो शेप चेंज हो रहा है, और मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना चेंज इन शेप भी ज़्यादा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। चलो ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. लास्ट मैंने क्या बोला? Yes. लास्ट में मैंने क्या बोला? ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना शेप का चेंज ज्यादा होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो एंगल है वो हमको शेप का चेंज दे रहा है। ये एंगल जितना ज्यादा होगा इतना चेंज इन शेप ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपको चेंज इन शेप का मेजरमेंट करना है तो आपको क्या मेजर करने ला चाहिए? Angle. So that's why this angle can be treated as a shearing strain. तो अगर मुझे ये एंगल फाइंड कर अगर मैं ये एंगल फाइंड कर देता हूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने shearing strain फाइंड कर दिया। Assume that the length of the cylinder is assumed to be L and its upper face is displaced by the delta x distance. Upper face is displaced by the delta x distance. Then I can say tan theta from figure. Tan theta is equals to मुझे क्या लिखना चाहिए? Delta Can I say it is a delta x? x by L. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, आप लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ा होगा कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। फिजिक्स में इसका मतलब हुआ कि थीटा बहुत ही स्मॉल है। तो साइन थीटा अपॉन थीटा आप लोग पढ़े होंगे कि क्या होता है? 0. 1। 1. तो इसका फिजिक्स में मीनिंग ये हुआ कि अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है
तो साइन थीटा अपॉन थीटा का रेशियो 1 होता है, मतलब साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. Similarly, you had also learnt about this. Limit theta tends to 0, tan theta upon theta is also equals to 1. 1. Friends, Yes, sir. इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आपका एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये tan थीटा अपॉन थीटा का रेशियो 1 होगा, मतलब tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा. तो फ्रेंड्स, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं. तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में अगर आप ऐसे आप सोचो कि आपके पास एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो एक साइड से उसको फिक्स किया हुआ है और दूसरे साइड आप टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे, तो यू विल नॉट गेट अ कंसीडरेबल चेंज इन शेप. प्रैक्टिकल लाइफ में ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में, हाँ डेफिनेटली, अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो या फिर कुछ लेबोरेटरी में जाके ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हो तो डेफिनेटली एक ऐसा आपको दिखाई देगा कि चेंज शेप में चेंज हो रहा है, बट वो बहुत ही कम रहता है. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप ऐसे फोर्स अप्लाई करके ट्राई करोगे तो इतना कुछ कंसिडरेबल नहीं होगा. मतलब ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एंगल बहुत ही कम होता है. तो एज अ एंगल इज वेरी स्मॉल, आई कैन ऑल्सो से द tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, and that is the elongation in the shape, shearing strain, and that is now can be written as a delta x by, कभी कभी h भी लिख सकते हैं, कभी l भी लिख सकते हैं. हाइट को h बोल दो तो अपॉन h. तो क्या ये फॉर्मुलेशंस आपको समझ में आया shearing strain का? Yes, sir. So this angle theta itself is a, this angle theta itself is a shearing Yes, sir. strain. Shearing strain. तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से, अगर आपको लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो आपको फोर्स कैसे अप्लाई करना है, उसका कंडीशन क्या है फोर्स अप्लाई करने का? Perpendicular You have to apply the force to his cross the section. cross sectional area. Am I right, friends? Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको वॉल्यूम स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन प्रोड्यूस करना है तो उसका कंडीशन क्या है? Everywhere force apply करनी है. Number one, whatever. you have to apply the force everywhere. Number two, you have to apply the force perpendicular to every point. And number three, you have to apply the similar force. तो अगर ये तीन कंडीशन आप फॉलो करते हो तो वॉल्यूम में चेंज होगा, एंड देन करस्पॉन्डेंट स्ट्रेन इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन. And number three, if you want to change the shape, you have to apply the force. You have to apply the force Tangential. Tangentially. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन ऐसा है कि सर ये वॉल्यूम स्ट्रेन का कोई एग्जांपल है आपके माइंड में जिसमें ऐसे तीन कंडीशन फॉलो करे ऐसा फोर्स लगता है? या if you immerse any solid object inside the liquid, if you immerse whole object, पूरा ऑब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड, तो यहाँ पे ऐसा कंडीशन ऑटोमेटिकली अचीव होगा कि वहां पे आप पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डाल देते हो, तो ये लिक्विड के द्वारा सॉलिड के हर एक सरफेस पे इक्वल एंड परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा. तो ये सिचुएशन आप अचीव कर सकते हो, वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस करा सकते हो. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Sir, वो buoyant force Yes, sir. बॉयंस फोर्स अलग चीज है, बॉयंस फोर्स तो चीज ही अलग है, बॉयंट फोर्स अलग चीज है, ये अलग है बॉयंट. सर जो क्ले होता है उसमें वॉल्यूम स्ट्रेन अप्लाई होता है क्ले. देखो, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस आप कर सकते हो, चाहे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है. ओके. तो ये तीन कंडीशन फॉलो करते हैं, ऐसे फोर्सेस आपको अप्लाई करना पड़ता है. अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो. इज दैट क्लियर? यस. Sir, हाँ बोलो. वो पानी वाला एग्जांपल दिया उसमें वेरी माइनर फोर्स लगेगा ना? हाँ, वो वॉल्यूम स्ट्रेन इटसेल्फ, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है ना वो बहुत ही माइनर होता है, और पानी वाला एग्जांपल दिया उसमें तो बहुत बहुत माइनर होगा. हम देख के हमको पता नहीं चलेगा, वो माइक्रोस्कोपिकली देखना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हमको नेकेड आई से वो पता नहीं चलेगा कि ये वहां पे वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके. Okay, sir. सर वो 0 हो सकता है. देखो, अगर आपने फोर्स अप्लाई किया है तो कुछ ना कुछ तो वहां पे आपको वॉल्यूम स्ट्रेन मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. ओके. हाँ, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि मेरे पास रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी नहीं, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो फिर क्या होगा? 0. तो जीरो होगा, बिकॉज रिजिड बॉडी इज द स्पेशल केस ऑफ द मटेरियल in which the relative displacement, relative distance of the between the particles does not change, which cannot be deformed, which cannot be destroyed. So, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं. बट हमारे पास जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो होते हैं वो सॉलिड बॉडी होते हैं,
depending on the type of body, we'll get some, definitely we'll get some volume strain. Okay. Okay, sir. So this is all about the strain. तो चाहे वॉल्यूम स्ट्रेन हो या चाहे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन हो या चाहे शेयरिंग स्ट्रेन हो, उसका यूनिट क्या होगा भैया? Unitless. Unitless. इट इज अ यूनिटलेस। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मैं है ना स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन कर दिया, अब मैं है ना वो स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो स्ट्रेस बहुत बुरी चीज होती है। बाद में बात करेंगे, बट स्ट्रेस, व्हाट इज अ स्ट्रेस? फिजिक्स के बारे में सोचते हैं। सो स्ट्रेस इज व्हाट? सो इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया। लास्ट लेक्चर में आई थिंक वी हैड जस्ट डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेस, एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. Restoring force produced per unit area. So that is called the stress. The symbol of the stress is a sigma. So it is a F by A. So anybody will tell me what should be the unit of the stress? Newton per meter square or Pascal. और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Newton per meter square. Friends, as just we had learned, there are three kind of strains are produced. So corresponding to that three kind of strain, we are having a three kind of stresses as well. जैसे तीन तरीके के स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी हिसाब से तीन तरीके के यहाँ पे स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होंगे। longitudinal stress, bulk, that is a volume stress, and shearing stress. तो मैं ना longitudinal stress and shearing stress को बाइफर्केशन करने के लिए, उसका बाइफर्केशन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर आता भी है ये, ऐसा एक एग्जाम्पल मैं अभी लेने वाला हूँ। थोड़ा उसको सोचिएगा और उस मेरे जो क्वेश्चन है उसके थोड़े आंसर दोगे आपको तो मजा आएगा। ओके, ओके। सो ये जो है ना, ये वॉल है और ये वॉल के साथ एक रोड है। तो रोड को एक जो एंड है ना वो वॉल के साथ फिक्स्ड किया हुआ है, और दूसरे एंड पे मैंने है ना एक स्पेशल टाइप का फोर्स प्रोवाइड किया है। द फोर्स आई हैड अप्लाइड इन दिस मैनर। सो फ्रेंड्स, ये जो फोर्स है ना वो इसके साथ, मतलब ये जो सिलेंडर रोड के जो एक्सिस है उसके साथ थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये दैट इज द फोर्स आई हैड अप्लाइड। तो मुझे सोच के बताओ कि फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है उसका वैल्यू क्या आएगा भैया? F cos theta. So this component of the force will be F cos theta. And can I say it is the normal force to that surface, to the cross-sectional area? Yes, sir. Yes, sir. And force का ये वाला जो component है F sin theta. F sin theta. बट मुझे सोच के बताओ कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो कैसे, किस हिसाब से अप्लाइड किया हुआ है, बताएगा कोई? तो F normal. नो, इट इज अ टेंजेंशियल। देखो आप देख सकते हो कि ये जो फोर्स है ना वो सरफेस से टेंजेंशियल है, देख सकते हो क्या आप ये? Yes, sir. सो दिस F sin थीटा फोर्स का, Sir. हाँ बोलो।
बोलो बोलो, कुछ पूछना है? ओके, सो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल अप्लाई हो रहा है, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो टेंजेंट, ये जो कंपोनेंट है वो ये क्रॉस सेक्शन के साथ परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा है। एम आई राइट फ्रेंड्स? यहाँ तक समझ में आया आपको? Yes, sir. Okay, fine. Yes. तो यहाँ पे अगर आपको लॉन्जिट्यूडनल, एंड हियर मोर प्रिसाइजली आई शुड से इट इज अ टेंसाइल, बिकॉज लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो टेंसाइल स्ट्रेस अगर आपको फाइंड करना है तो एज द डेफिनेशन इज अप्लाइड फोर्स, देखो एक्चुअली इट इज अ रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, बट व्हेन द बॉडी इज इन द इक्विलिब्रियम देन रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। तो उसको अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हैं। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस फाइंड करने के लिए मुझे कौन सा फोर्स लेना चाहिए? एफ एन या एफ टी? सोच के बताओ, एफ लेना चाहिए, एफ एन लेना चाहिए या एफ टी लेना चाहिए? कौन सा लेना चाहिए? FN. FN. एफ एन नॉर्मल जो लगेगा ना वही तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो टू find the longitudinal stress you have to consider the force which is applied normal to the cross sectional area, and here it is a F cos theta by A। आया बात समझ में फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. एंड शियरिंग स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आपको कौन सा फोर्स लेना पड़ेगा? जो शेप चेंज होता है, शेप कौन चेंज करता है? Tangential. हाँ, तो you have to consider the tangential force by area. So can I write it is a F sin theta by cross sectional area? Yes, sir. So this is a very interesting example to differentiate the longitudinal stress and shearing stress. And I think you understood this bifurcation. Am I right, friends? Am I right, friends? Yes, sir. Yes, sir. So correspondent to three kind of a strain, three kind of stresses are also there. Number one, longitudinal stress, and this, सर ये टेंजेंट से लगाएंगे तो सिर्फ वो शेप चेंज नहीं होगा ऐसा मतलब? हाँ तो शेप ही चेंज होगा ना। और इसमें ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में बोला है उसमें भी शेप ही चेंज नहीं होगा क्योंकि नहीं, शेप देखो, मैंने फोर्स, ये मेरा मेन फोर्स है, मैंने फोर्स इस हिसाब से लगाया हुआ है। तो ये मेरा जो फोर्स है ना, इट इज नाइदर टेंजेंशियल नॉर कंप्लीटली परपेंडिकुलर, बट हियर आई कैन से वी हैव अ टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो एक कंपोनेंट जो है ना वो लेंथ चेंज करेगा और दूसरा कंपोनेंट शेप चेंज करेगा। तो जिसके द्वारा लेंथ चेंज होता है जो फोर्स, जो कंपोनेंट के द्वारा, तो वो आपको प्रोड्यूस करेगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड जो शेप चेंज करेगा वो प्रोड्यूस करेगा शियरिंग स्ट्रेस। दैट्स इट। आप बताओ क्या पूछ रहे थे? अभी पता चल गया सर। Is that clear? यस सर। Now longitudinal stress can also be sub-classified into two parts that is known to you. बोलो कौन कौन से पार्ट में है? And compressive. Is that clear, friends? यस सर। अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इक्वल फोर्स लगाओगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? आपका वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, एंड that correspondent strain, the stress which is produced is known as a volume or bulk stress. Friends, volume stress अगर आपको फाइंड करना है तो आपका वो जो फोर्स है जो आपने परपेंडिकुलर एवरी पॉइंट पे लगाया हुआ है, दैट फोर्स अपॉन एरिया। बट फ्रेंड्स आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज a force applied perpendicularly per unit area is defined as a
अरे बोल भी दो। लॉन्गिट्यूड longitudinal stress. अरे वो तो खाली क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर था, वो पूरे बॉडी के लिए परपेंडिकुलर नहीं था भैया। वो जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेस जो था ना, बल्क स्ट्रेन। उसमें जो, मेरी बात सुन लो, ये डिफरेंशिएट पहले सुन लो। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस करने के लिए आपने जो फोर्स प्रोवाइड किया था, दैट वाज अ परपेंडिकुलर, बट दैट वाज परपेंडिकुलर टू ओनली द क्रॉस सेक्शनल एरिया, not the full body. It was not the perpendicular to the whole body. So it cannot be considered to be a pressure. So longitudinal stress and shearing stress जो है वो प्रेशर नहीं है, बट वॉल्यूम स्ट्रेस के अंदर हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो पूरे बॉडी के परपेंडिकुलर है। And here the definition of the pressure is satisfied. Here the definition of the pressure is satisfied. तो सभी स्ट्रेसेस जो है ना वो प्रेशर नहीं है, बट पर्टिकुलरली जो वॉल्यूम स्ट्रेस है वो डेफिनेटली क्या है, प्रेशर। Pressure. वो प्रेशर है। चलो ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। इज इट क्लियर? एंड कभी कभी वो प्रेशर को चेंज इन प्रेशर भी बोल सकते हैं या अप्लाइड प्रेशर भी बोल सकते हैं, बिकॉज कोई भी बॉडी हमारे आसपास जो है ना उसके ऊपर ऑलरेडी एक तो प्रेशर है ही, एक टाइप का प्रेशर तो है ही। कौन सा प्रेशर आपको पता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कोई भी ये अर्थ के ऊपर जितना भी बॉडी है उसके ऊपर है ही, और ये जो प्रेशर है दैट इज एक्सेसिव प्रेशर, इट इज अपार्ट फ्रॉम द वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कभी कभी ये प्रेशर को चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस Yes, सर। sir. एंड अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि शेप चेंज होता है, एंड देयर करस्पॉन्डेंट to the change in the shape, the stress which is called a shearing stress. तो shearing stress जो है ना, तो उसके लिए आपका जो फोर्स है ना that must be applied tangential to the body. So now you, I think, understood the different type of the stresses. Am I right, friends? Yes, sir. So friends, यस। you have a three kind of a strains. As you have a three kind of a stresses, we have a three kind of modulus as well. तो हम यहाँ पे अब मॉड्यूलस की बात करेंगे। तीन टाइप के स्ट्रेन है, तीन टाइप के स्ट्रेसिस है, तो इस हिसाब से तीन टाइप के मॉड्यूलस भी होते हैं। मॉड्यूलस और कोई नहीं, उसको इलास्टिक कांस्टेंट बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट इट इज अ इलास्टिक कांस्टेंट। क्या है उसका मीनिंग? मीनिंग क्या है उसका? So modulus is nothing but it is the ratio of stress and strain. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो रेशियो है ना उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे सोच के बताओ तो फिर उसका यूनिट क्या होना चाहिए? Newton per meter square. हाँ, स्ट्रेन तो यूनिट लेस है भैया, तो जो न्यूमेरिकल का यूनिट जो होगा ना वही तो बाकी बचेगा ना। स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, तो यूनिट ऑफ दिस विल बी ऑब्वियसली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ओनली। क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। सो जैसे हमारे पास तीन स्ट्रेस है, तीन स्ट्रेन है, तो दैट करस्पॉन्डेंट टू दैट वी हैव अ थ्री काइंड ऑफ मॉड्यूलस एज वेल। अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर रेशियो फाइंड करते हैं तो उसको यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? यंग्स मॉड्यूलस। थॉमस यंग वाज अ ब्रिटिश डॉक्टर। But though he was a British doctor, but he was performing the experiment of the physics, and बहुत सारे इन्वेंशन उसने किए हैं, बहुत सारे फिजिक्स में कंट्रीब्यूशन किया है। So we have a three kind of elastic constant. Number one, Young's modulus. Number two,
बल्क मॉडुलस, बल्क वो कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है भैया, यंग इज ओनली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. नंबर 3 shear modulus. So if we consider the ratio of a longitudinal stress and a longitudinal strain, then that correspondent ratio is defined as a Young's modulus. So Young's modulus is defined as a ratio of longitudinal stress upon longitudinal strain. Longitudinal stress, you know, that is a Fn by A, and longitudinal strain, you know, delta L by L. So it is a Fn by A, normal force upon area, delta L by L. So your Young's modulus will be equals to Fnl upon A delta L. Is that understood, friends? Is it understood, friend? Yes, sir. Yes, sir. Bulk modulus is sometimes denoted by B, sometimes it is also denoted by K. So bulk modulus is equals to, what should be the definition for the bulk modulus? आपको पता चल गया होगा कि क्या definition है उसका? Volume stress upon volume strain. Very good. Volume stress upon volume strain. बट हमको ये पता है कि वॉल्यूम स्ट्रेस जो होता है ना, वही तो हमारा प्रेशर है. Am I right, friends? Yes, sir. Yes. आपका बल्क मॉडुलस हो जाएगा प्रेशर अपॉन डेल्टा वी. कभी कभी यहाँ पे पी के बदले डेल्टा पी भी लिखते हैं. क्यों? बिकॉज वो एक्चुअली प्रेशर नहीं है, वो एक्सेस इन द प्रेशर है. ऑलरेडी बॉडी के ऊपर तो प्रेशर होता ही है, और ये एक्सेस इन द प्रेशर. तो दैट्स व्हाई समटाइम्स इन दिस इक्वेशन, in place of p we can also write delta p. Okay, Yes, sir. but I Yes. need to write a negative sign here. Now the question is, why the negative sign is appearing here? Why I have to put the negative sign is the question. तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease. Decrease. So when you apply the pressure, the volume of that object is going to be decreases. Am I right, friends? तो Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये चेंज इन वॉल्यूम है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा? Negative. 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 But moduli cannot be negative. Young, bulk और shear moduli are not negative. तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं करते हो, मान लो कि अगर आपने ये नेगेटिव साइन नहीं किया है, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? डेल्टा वी बाई वी आपको नीचे जो है ना वो नेगेटिव, बिकॉज इफ व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम बिकम्स नेगेटिव बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस. तो आपको डिनोमिनेटर नेगेटिव मिलेगा तो पूरा रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा. बट बल्क मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव. तो यहाँ पे तो क्या मिल रहा है आपको? आंसर नेगेटिव मिल रहा है. तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई हैड पुट अ नेगेटिव साइन हियर. So this negative sign will make the formula, will make the result, this negative sign will be Positive. 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 देखो फ्रेंड्स, આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે. લોકોને એવું લાગશે કે મેં નેગેટિવ સાઇન પ્લેસ કર્યો છે, પણ જીવનમાં દિલમાં જ ખબર છે કે નેગેટિવ નહીં પણ Positive sign. પોઝિટિવ કર્યો છે. Is that clear, friends? Yes, sir. તમે હજી નાના છો. Yes, sir. હા, તમે હજી નાના છો, પણ મિત્રો આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે. લોકોને એવું લાગે કે નેગેટિવ કર્યું, પણ દિલમાં જ ખબર છે કે નેગેટિવ નહીં પણ. Positive. Positive. Positive છે. So to make the result positive, I had placed a negative sign over there. Is that clear, friends? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Positive करो. Yes, sir. हाँ, जीवन में. Okay. So this is the formula for the bulk modulus,
and the reciprocal of the bulk modulus is known as a compressibility. So what is a compressibility? So compressibility is denoted by sometime K. So it is a reciprocal of the bulk modulus. So what should be the unit of the compressibility? उसका unit तो फिर क्या होना चाहिए? बल्क कोई भी मॉड्यूलस है, मॉड्यूलाई का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो इसका जो यूनिट है ना वो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन होना चाहिए। यू कैन ऑल्सो से इट इज अ पास्कल इनवर्स। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ओके, अब ये शियर मॉड्यूलस, इसको कभी कभी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, दैट इज समटाइम नेम्ड एज अ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ऐसा भी बोलते हैं। इसका सिंबल कभी कभी ईटा लेते हैं, कभी जी भी लेते हैं, मैं ईटा लूंगा। तो ऑब्वियसली आपका उसका डेफिनेशन तो आपको पता चल गया होगा, क्या होगा डेफिनेशन इसका? व्हाट शुड बी डेफिनेशन? शेयर स्ट्रेस अपन शेयरिंग स्ट्रेन। इसका जो डेफिनेशन है वो शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन shearing strain. So this is the definition. तो फ्रेंड्स आपको पता है कि shearing stress जो होता है ना वो हमको पता है कि tangential force per unit area, and if you remember we had derived that formula of shear strain, that is delta x by L, if you remember. Am I right, friends? Yes, sir. So this is the equation of the shear modulus. So friends, as we have a three kind of strains, we have a three kind of stresses as well, and we have a three kind of moduli here. Is it understood, friends, all the thing? Yes, sir. तो मैंने ना 5-6 क्वेश्चंस आपको एक साथ करा दिए। अब देखते हैं मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको कराए। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको भेज दूंगा। मतलब ये 3 टेबल आप याद रखोगे, 3 चार्ट याद रखोगे तो आपके 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? यस Yes, sir. Okay. सो फ्रेंड्स देखो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन आपको करा दिए। मैंने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 तक कराया था, मैं राइट फ्रेंड्स? यस सर। देखो अभी Yes, sir. 5th क्वेश्चन भी हो गया Yes. लॉन्जिट्यूडनल। अब देखो ये आप देख सकते हो कि 5th क्वेश्चन आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, Yes, sir. ये 5th वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। 6th क्वेश्चन जो है ना वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन एंड डिस्कस द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में भी हमने डिस्कस किया। उसके भी 2 पार्ट है, टेंसाइल स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 7th क्वेश्चन जो है वो शियरिंग स्ट्रेन है एंड शियरिंग स्ट्रेस है। तो शियरिंग स्ट्रेस हमको कैसे पता करना है? तो मैंने बताया कि आपको थीटा मेजर करना है। अगर आपको थीटा मेजर कर, आप थीटा मेजर कर पाओगे तो शेप कितना चेंज होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो थीटा मेजर कर लो तो वो आपका हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये बुक का भी एक एग्जांपल दिया है कि भाई बुक में भी आप ऐसे टेंजेंशियल फोर्स लगा के बुक में भी आप शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात है, उसमें वॉल्यूम स्ट्रेन मैंने आपको बताया कि 3 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होना चाहिए, एवरीवेयर इक्वल एंड परपेंडिकुलर फोर्स अगर आप लगाओगे तो वहां पे आप वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन 8 है वो वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन के रिगार्डिंग है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखो ये 4 क्वेश्चन तो हो गए, 5, 6, 7, 8, और उसमें से आपको 6, 7, 8 2 मार्क्स 3 मार्क्स में प्रिपेयर करना है। 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन आपको एज अ लर्न बाय हार्ट करना है एज अ 2 मार्क्स। एज अ क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 9 अभी नहीं कराया मैंने, 10 नहीं कराया, 11 नहीं कराया मैंने, 12 हो गया। व्हाट इज मॉड्यूलाई? व्हाट इज मॉड्यूलाई? और क्वेश्चन नंबर 12 इज कंप्लीटेड। 13 में यंग मॉड्यूलस की बात है,
14th के अंदर नहीं, 14 इट इज द एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द यंग्स मॉडुलस, वो नहीं कराया मैंने, 14 नहीं कराया, बट 15 एंड 16 खत्म हो गए। 15 में शेयर मॉडुलस की बात है एंड 17 के अंदर बल्क मॉडुलस की बात है। तो 15, 16 एंड 17 इज ओवर। इज दैट क्लियर फ्रेंड? यस सर। सो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैंने कराया आपको सर 16 में बल्क मॉड्यूल है, 17 में तो 15th में शेयर मॉडुलस एंड 16 में बल्क मॉडुलस एंड 17 एंड 17 शुड बी, अच्छा 17, बाकी है ना। हाँ वो हो गया ना, कंप्रेसिबिलिटी हाँ क्या कंप्रेसिबिलिटी हो गया हो गया ना, तो 17 भी हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। फ्रेंड्स, आपका जो होमवर्क है, जो इको आज है ना, मैं यहाँ तक पढ़ाऊंगा। आज पढ़ाने का वैसे मूड भी नहीं था, 2 दिन से ऐसा ही है, तो आज तो हम यहाँ तक रखते हैं। बट तो भी ये जो आज के जो भी टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर मतलब इसके बेस पे है। तो आपने यहाँ पे आज 9 डिफरेंट थिंग यू हैड लर्नड हियर, 3 स्ट्रेस, 3 स्ट्रेन्स एंड 3 मॉड्यूली। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? जस्ट आप यस सर। को देख लो तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा आज का लेक्चर। इज दैट क्लियर? आपको प्रिपेयर करने की वैसे बहुत जरूरत नहीं है, वो भी होमवर्क कर लेना। मैं आपको बोल दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में करना है, कौन से 1 मार्क्स, मतलब कौन से आपको लर्न बाय हार्ट करना है। जो ट्वाइस में दूंगा वो आपको लर्न बाय हार्ट करना है। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ओके यस सर।